Hello everyone, Assalamu alaikum. Today we are going to start with another chapter of Business 9609, and this chapter is related to the section of finance. The name of this chapter that we'll be covering today is costs. So if we start with this cost, so what is meant by cost basically? Cost को हम अगर उर्दू में कहें तो we call it खर्चा, right? Cost कोई सा भी किसी या किसी भी किस्म का खर्चा होता है, किसी भी किस्म का expense होता है. That is what we call cost, right? But whenever we are asked to write down the detailed definition of cost, we do not say kharcha or expense, balki instead we write down a proper definition of cost. And what is the definition of cost? Let's write it down. Let's break it down. So when we talk about the definition for cost, we need to make sure कि हम जो definition लिख रहे हैं that highlights all the key terms, right? That means that cost is the data relating to all financial expenses that are incurred by a business in producing goods or providing services. So basically cost या cost information कहते हैं किसी ऐसे data को that provides you all the financial informations or financial expenses that has been incurred or that has been taken place in the production of any good or a service. Now, the cost information includes multiple things or various things, or you can say various concepts. So first, let's start with the cost information that could include those various concepts जिसकी मैं बात कर रही हूँ. Cost information includes, okay, and what it includes is number one, the total cost. ठीक है, total cost मतलब कि all together क्या हमारा expense आ रहा है, that the average cost. What average cost is, per unit cost को हम average cost कहते हैं. The marginal cost हम variable cost को कहते हैं. And the fixed and indirect cost. So these four things are included, or these four concepts are included in this. Now, before I proceed with other things, हमें ये समझ आना चाहिए, it is important for us to understand why are we learning this concept? Why are we learning about cost? What will be, the benefit of learning this? So basically, if we are learning about cost or cost information, the only reason that there is a need of cost information is because of choosing the right strategies or methods or deciding upon the location of operations and so on. So let me write it down and explain you in detail. So here's another heading, the need for accurate cost information. And basically, as I told you, accurate cost information is important because almost every business decision affects cost and the profitability. So the key reasons we could consider, the key reasons जो हमारे पास आ सकते हैं. Number one, we could say calculation of profit or
लॉस, यानी कि प्रॉफिट या लॉस का हमें अगर कैलकुलेशन करना हो तो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू हैव दिस डिटेल अपॉन, और यू कैन से द डिटेल्ड कॉस्ट इंफॉर्मेशन या फिर एक्यूरेट कॉस्ट इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. नाउ सिंस वी हैव टॉक्ड अबाउट प्रॉफिट और सिंस वी हैव जस्ट टेकन दिस नेम ऑफ प्रॉफिट, वी नीड टू मेक श्योर कि हमारा प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है. So whenever we are asked to figure out or calculate profit, the formula is very easy. Total revenue minus the total costs. This is basically the formula of profit. Now, like in case, if the cost is inaccurate or the cost information are inaccurate, what will happen? Of course, the profit may be overstated, which means poor decisions हम ले रहे होंगे. और अगर हमारी इंफॉर्मेशन जो कॉस्ट इंफॉर्मेशन है वो इनकरेक्ट होती है तो हो सकता है हम लॉस को कंसिडर ही ना करें. दैट मीन्स लॉसेस मे गो अननोटिस्ड, right? So, accurate cost data will allow the managers to correctly assess business performance and avoid false confidence. Right? I hope this first point is clear to you. Let's proceed towards another one. That is the second point, that why cost accurate or accurate cost information is important. The other point or the other reason that we have is pricing decisions. Yes. Why we need to consider cost in order to decide the price, whatever we are keeping for the product or what we are deciding for the product, is because first we need to evaluate the cost and then we whatever pricing strategy के साथ हम जा रहे हैं, we need to add that profit margin or added value with that और फिर हम उसको sell out करेंगे. राइट, बिकॉज विदाउट दैट हम उसको सेल आउट अगर कर भी देते हैं तो वी विल बी सेलिंग इट कॉस्ट टू कॉस्ट और बिलो द कॉस्ट. राइट, इफ वी आर सेलिंग इट कॉस्ट टू कॉस्ट और इफ वी आर सेलिंग इट बिलो द कॉस्ट, दैट डजंट मीन कि हम बिजनेस कर रहे हैं. राइट, बिकॉज बिजनेस का तो मोटिव ही ये होता है कि हम प्रॉफिटेबली किसी चीज को, यानी कि हम किसी प्रोडक्ट को बनाएं और उसको सेल आउट कर रहे हैं. राइट, सो बिजनेस नीड्स टू इंश्योर, दैट मीन्स कि बिजनेस को इंश्योर करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा दैट द कॉस्ट इज कवर्ड. नंबर वन, कॉस्ट इज कवर्ड, एंड नंबर टू, इट इज generating profit. In competitive markets, I would say pricing too low due to underestimate costs can force a business out of the market. That is why I would say that accurate cost information would be important for any business and for every business, just to make sure कि अगर उसको market में रहना है तो उसको अपनी pricing सही तरीके से करनी पड़ेगी. All right, moving on with another thing, with another concept, like with another reason basically. The other reason is कि अगर हमें cost accurate होगी हमारी, हमने सही से costing की हुई होगी तो क्या होगा? It would be easier for the business or for the managers to measure or monitor the performance. ठीक है कि हमने last year इस तरह से perform किया था, this was the output, and now this time we are performing in this way and this is the output that we are getting. So the third reason I would write is measuring and monitoring performance. That means that cost data will allow So cost data हमें allow करेगा to go ahead with all these details के कहाँ पे हमारे से lacking हो रही है, कहाँ पे हम अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ पे हमारी performance low हो रही है. So this is what cost data or accurate cost data would help us with. Number one, overtime. Number two, identification of inefficiencies. And number three, control of waste.
Example, if unit cost rise without an increase in the output quality, this means that the efficiency is falling, right? क्योंकि आपका per unit cost कैसे increase हो रही है? Without any sort of increase in the output quality, आपकी per unit cost कैसे increase हो रही है? That matters, right? Now, number four, or the fourth reason that we could consider is the budgeting and the planning. That means जितना accurate हमारे पास data होगा, उतना ही accurately हम अपने budgets की या फिर हम अपनी overall resources की planning कर सकेंगे. अदरवाइज क्या होगा कि जितना खराब डेटा होगा उतनी ज्यादा खराब हमारी प्लानिंग होती जाएगी, which would lead to loss, of course. So, accurate information would help the business to set realistic budgets, and it will provide targets. मतलब आप एक टारगेट सेट कर लेंगे कि ओके दिस वाज द थिंग दैट वी हैव परचेज्ड अर्लियर, अब हम रिसोर्सेज को इस तरह से नहीं उस तरह से खरीदेंगे कि हमारे बजट हम उसी के अकॉर्डिंगली एलोकेट कर सकें, राइट? सो दिस इज व्हाट विल हैपन. एंड previously we have already studied about one more concept that was variance analysis. और ये एक्यूरेट जब हमारे पास बजट होगा तो it would help the business to do or to perform variance analysis. That means कि हमारे पास एक्चुअल में हमने कितना बजट के हिसाब से किया और बजटेड कितना था, यानी कि हमने सोचा कितना था कि कितने का खर्चा होगा और एक्चुअल में कितने का खर्चा हुआ. दैट इज व्हाट वी इवेल्युएट और कैलकुलेट इन वेरिएंस एनालिसिस का कॉन्सेप्ट. देन another reason that we could consider is the resource use decision, कि हम कौन सी resources के साथ जाएं, कौन सी resources को use करें और कौन सी resources को use ना करें. That means कि हम cost, बल्कि you can consider that cost data would help to decide whether to go with some sort of labor intensive methods or to go with some sort of capital intensive methods. Methods. Okay, I hope you all remember कि what capital intensive and labor intensive is. So basically, resource या फिर using cost data would ensure कि हमारे पास कौन सी resources जो हैं वो scarce हैं और किस तरह से उन resources को हम efficiently allocate कर सकते हैं या फिर किया जा सकता है. Another reason that we could consider, that is going to be the sixth reason I believe, is कि जो डिसीजन मेकिंग होगी उसमें इजी हो जाएगा. दैट मीन्स कि हम ये देख लेंगे कि ओके ऑप्शन वन पे इतनी कॉस्ट आ रही है, ऑप्शन टू पे इतनी कॉस्ट आ रही है, सो वी कुड गो विद ऑप्शन नंबर टू. ठीक है, दैट मीन्स वी कुड इजीली डिसाइड और मेक डिसीजंस बिटवीन ऑल्टरनेटिव्स. ठीक है, दिस इज द पॉइंट दैट इज बीइंग डिस्कस्ड ओवर हियर. सो आई वुड राइट दैट डिसीजन मेकिंग between alternatives. Decision making between alternatives. That means कि managers could easily compare the cost of machines, locations, productions, right? And the decisions based on accurate cost comparisons would reduce the financial risk. यानी कि आपके पास अब वो सीन नहीं होगा कि आप जो है वो 100% श्योर हों या कोई पॉसिबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी लॉसेस की. क्योंकि मैं कह रही हूँ कि ज़्यादा नहीं रहेगी. आई एम नॉट सेइंग कि पॉसिबिलिटी लॉस की ख़त्म हो जाएगी. आई एम सेइंग दैट ह्यूज पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी बिकॉज आप कंसिडर कर रहे हैं कॉस्ट को, आप कंसिडर कर रहे हैं कि आपका किस टाइम पे कितना खर्चा चल रहा था या किस टाइम पे क्या हो रहा था, उसी की बेसिस पे यू आर गोइंग टू कंसिडर all your decisions. So these are the basically reasons why we need accurate cost information. I have also taught you about what cost is and what are the concepts that we would learn in the chapter of cost information. Moving on with another thing or with another heading, that is types of cost. Another heading that we will be moving forward with is types of
costs. Okay. Be very attentive, be very careful because this is an important one and you might feel like कि ये थोड़ा मुश्किल चल रहा है. ठीक है, वैसे तो कोई मुश्किल सीन है नहीं इसका, but still. All right. When we are learning about cost or the types of cost, we need to remember कि हमारे पास multiple types की cost होती है. The very first one that we have is direct cost. The very first one that we have is direct cost. Okay. What is a direct cost? We could say that direct cost वो cost होती है हमारी which could easily be identified on the number of unit that you have produced. That means कि आपने अगर एक unit produce किया है तो आप easily identify कर सकते हैं कि yes this is the labor who has produced this good, like one product जो produce हुई है, one unit produce हुआ है, ये इस labor ने produce किया है, so we will be paying this expense to that, so we will be paying this amount to that labor. तो वो जो अमाउंट आपने लेबर को पे किया है दैट इज योर डायरेक्ट कॉस्ट बिकॉज दैट इज डायरेक्टली बीइंग कंसिडर्ड और क्लियरली बीइंग आइडेंटिफाइड विद ईच यूनिट दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड. That is why we are going to consider it a direct cost. So how can we define it? We can define it by saying that direct cost are costs that can be clearly identified and allocated to a specific unit of production, such as obviously it is important for us कि हम उसको examples को consider करें, such as raw materials, labor, direct labor. ठीक है. अच्छा, why it is important for us to go ahead with this direct cost or to understand what direct cost is, because direct cost would form the basis of unit cost. ठीक है, and it is essential or it is important to calculate the contributions कि आपकी इस product ने कितना contribute किया. Moving on with the indirect cost. Number two, indirect cost. अच्छा, इनडायरेक्ट कॉस्ट में हमारे पास क्या होता है, जैसे डायरेक्ट कॉस्ट में होता था कि कॉस्ट जो थी वो डायरेक्टली एलोकेट हम कर देते थे, राइट. बट राइट नाउ इन इनडायरेक्ट कॉस्ट वी कैन नॉट एलोकेट द कॉस्ट डायरेक्टली. ठीक है, सो दैट मीन्स दैट इनडायरेक्ट कॉस्ट आर costs that cannot be directly allocated to a single unit or product. ठीक है, यानी कि आप इजीली उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि आपने किस यूनिट पे उसको वो किया, क्योंकि वो प्रोडक्ट क्योंकि वो जो कॉस्ट आपको आ रही है वो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में डायरेक्टली नहीं आ रही. ठीक है, अब ये कौन सी कॉस्ट हो सकती हैं जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, सच एज फैक्ट्री रेंट. ठीक है, पूरी फैक्ट्री का किराया है, पता नहीं कौन सी यूनिट पे हम कितना लगाएं, या फिर एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है. ठीक है, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, वो जो ऑफिस में बैठा हुआ मेरा स्टाफ है मुझे उसको पेमेंट करनी है, दैट मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट. और बल्कि सैलरीज कंसिडर किया जाएगा इसको, एडमिन की जो सैलरी होती है उसका क्या सीन होगा वो भी हमारे पास इनडायरेक्ट कॉस्ट में कंसिडर होगा. ठीक है, सो दिस इज व्हाट इनडायरेक्ट कॉस्ट रेफर्स टू और इज बीइंग कंसिडर्ड अबाउट. सो
So far we have learned about two costs. Number one was direct cost and number two was indirect cost. ठीक है. अच्छा, इसमें हमने एग्जाम्पल्स भी कंसिडर कर ली कि ठीक है भाई, रेंट हो गया, सॉरी, या फैक्ट्री का रेंट हो गया, या फिर एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट आपकी हो गई, उसको हम कंसिडर कर रहे थे. नाउ द थर्ड टाइप ऑफ कॉस्ट दैट वी हैव इज द फिक्स्ड कॉस्ट. ठीक है, अब फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो चेंज नहीं होती, जो सेम रहती है. इसका मतलब ये कि फिक्स्ड कॉस्ट हमारी वो कॉस्ट होती है जिसका अमाउंट फ्लक्चुएट नहीं करता अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट वी आर प्रोड्यूसिंग. ठीक है, यानी कि मेरे लेट्स सपोज कि मेरा एक स्कूल है. ठीक है, मेरे स्कूल में मतलब लॉकडाउन का जो सिनारियो था उसमें भी मैं उस प्रेमिसेस का रेंट उतना ही दे रही थी, जबकि लॉकडाउन में क्या हुआ था, बच्चे नहीं आ रहे थे. राइट, फिर भी मैं रेंट उतना ही दे रही थी. यानी कि मैंने आउटपुट प्रोड्यूस किया कि नहीं किया, still I was supposed to pay the same amount, right? It doesn't matter how much units I have produced, I have to pay the same amount. That is what we call fixed cost. So fixed cost do not, fixed cost do not change with output in the short run cost. Okay. अच्छा, अब इसकी क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं? We could say such as रेंट, जैसे मैंने अभी आपको बताया. ठीक है, मैनेजमेंट की सैलरीज. अब देखिए, यहाँ पे जो मैंने बात की है ना बच्चों, वो क्लियरली मैंने ये बताया है कि आई एम टॉकिंग अबाउट द सैलरीज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेजेस. यानी कि मैं ना टाइम रेट से पेमेंट कर रही हूँ, ना मैं पीस रेट से पेमेंट कर रही हूँ, बल्कि मैं बात कर रही हूँ सैलरीज की. आई होप यू गाइज नो द डिफरेंस बिटवीन सैलरीज एंड वेजेस. ओके. अच्छा, मूविंग ऑन विद द फोर्थ type of cost. The fourth type of cost that we have is the variable cost. ठीक है. अच्छा, अब वेरिएबल कॉस्ट का क्या सिनेरियो होता है? वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड. आपने 10 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, आप 10 यूनिट के हिसाब से पेमेंट करेंगे. आपने 20 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, आप 20 यूनिट्स के हिसाब से पेमेंट करेंगे. दैट मीन्स दैट वेरिएबल कॉस्ट आर द कॉस्ट, और variable costs change directly with output. ओके. एंड इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है? इसकी एग्जाम्पल वही हो सकती है जैसे मैंने आपको ऊपर क्या बताया था, मैनेजमेंट सैलरीज. ठीक है, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं वेजेस की बात कर रही हूँ. ठीक है, क्योंकि वेजेस में क्या होता है कि पीस रेट मेथड पे मैं उसको पेमेंट कर रही थी अपने एम्प्लॉय को. यानी कि जितने यूनिट्स उसने प्रोड्यूस किए उतने यूनिट के मैंने उसको पेमेंट कर दी. ठीक है, तो नाउ हियर आई एम गोइंग टू कंसिडर दैट थिंग. क्या करेंगे? सच एज पीस रेट लेबर. पीस रेट लेबर का क्या मतलब कि मेरा वो एम्प्लॉय जो 1 यूनिट अगर बनाता है तो मैं उसको 1 यूनिट के हिसाब से पेमेंट करती हूँ, 10 यूनिट अगर बनाता है तो मैं 10 यूनिट के हिसाब से पेमेंट करती हूँ. तो उसका क्या सीन होगा? उसका यही होगा, उस पर हम वेरिएबल कॉस्ट ही कंसिडर कर रहे हैं. ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज योर वेरिएबल कॉस्ट, और यू कैन से द रॉ मटेरियल्स एज वेल. ठीक है जी. ओके, मूविंग ऑन with another type of cost. The fifth one that we have is total cost. ठीक हो गया. टोटल कॉस्ट क्या होती है? टोटल कॉस्ट कहते हैं कि जब हम वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को सम निकाल लेते हैं, टोटल कर देते हैं, प्लस कर देते हैं. ठीक है, सो वी कुड से टोटल कॉस्ट is the sum of fixed and variable cost. ठीक हो गया. Then we have sixth type of cost that we call average cost.
अब एवरेज कॉस्ट क्या होती है? एवरेज कॉस्ट कहते हैं बेटा पर यूनिट कॉस्ट। ठीक है, एवरेज कॉस्ट इज बेसिकली द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच यू डिवाइड बाय द टोटल आउटपुट, ताकि आपको पर यूनिट कॉस्ट आपकी आइडेंटिफाई हो जाए। सो एवरेज कॉस्ट इज द पर यूनिट कॉस्ट। ठीक है, नंबर 7 पे हमारे पास आ जाती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, अब ये जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट का सिनारियो है, सेमी कहते हैं हाफ। ठीक है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास वो कॉस्ट होती हैं जो कभी कभी वेरिएबल में कंसिडर होती हैं और उनमें से कुछ अमाउंट जो होता है वो फिक्स्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप अगर बिजली का इस्तेमाल करते हैं, जो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी आती है, उसमें आपको पता होता है कि भाई इतना अमाउंट तो हमें देना ही देना है, और उसके ऊपर हम जितने यूनिट्स कंज्यूम करेंगे उसके हिसाब से हम पेमेंट करेंगे। ठीक है, सो व्हाट इज दैट? दैट इज योर सेमी वेरिएबल कॉस्ट। टेलीफोन बिल्स पे ये सीन होता है, इवन सेल्स कमीशंस पे भी यही सीन होता है। ठीक है, यही सिनेरियो अप्लाई हो रहा होता है। सो लेट मी राइट इट डाउन दैट सेमी वेरिएबल cost contain both fixed and variable elements. For example, electricity or telephone bills. All right. So these are the types of cost. अच्छा, अब मैं एक और कॉस्ट की यहाँ पे बात करूंगी, another cost, or we could say the last type of cost that we have. Number 8. The last type of cost that we have is मार्जिनल कॉस्ट। अच्छा, अब ये मार्जिनल कॉस्ट का क्या सिनेरियो है? मार्जिनल कॉस्ट बेटा वो होती है दैट आर द एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट। ठीक है, अब आपने एक और यूनिट का आउटपुट प्रोड्यूस कर दिया, आप पे एडिशनल कॉस्ट अप्लाई होगी। ठीक है, एंड marginal cost will be the variable cost. Marginal cost will be the variable cost that is required to make that one additional unit. उसको हम कहते हैं क्या? Marginal cost. ठीक है, let me write it down that marginal cost is the additional cost of producing one more unit of output, of producing one more unit of output, and will be the variable costs needed or required to make this extra unit. अच्छा, what is the reason that I'm telling you all these types of cost? मैं directly concept पे भी आ सकती थी, but I'm not okay with proceeding with the concept directly। जब तक बच्चों को या students को background नहीं पता होगा चीज़ों का, it is not easy for them to process some sort of excess information। ठीक है, तो इस वजह से I have informed you about what are the types of cost that we have। once we are done with the types of cost, कि हाँ भाई हमारे पास इतने इतने टाइप्स की कॉस्ट है, हमारे पास 6 टाइप की कॉस्ट है: डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, फिक्स्ड, वेरिएबल, टोटल, एवरेज, सेमी वेरिएबल, मार्जिनल। ठीक है, नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द अप्रोचेस ऑफ कॉस्टिंग। ठीक है, कि हम कॉस्टिंग कितने तरीकों से करते हैं, हमें कितने तरीकों से या कितने मेथड से कॉस्टिंग करना सिखाया जाता है। ठीक है, so now let's proceed to another concept, approaches of costing की तरफ बढ़ते हैं। what approaches of costing do we have, इसके बारे में पढ़ते हैं। okay,
अप्रोचेस टू कॉस्टिंग, ठीक है, यानी कि हम जो कॉस्ट डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसको कलेक्ट करने के क्या तरीके हैं, अब हम वो पढ़ने वाले हैं। सो बेसिकली वी हैव टू मेन अप्रोचेस ऑफ कॉस्टिंग, ठीक है। हमारे पास दो मेन तरीके होते हैं कॉस्टिंग करने के। द वेरी फर्स्ट वन दैट वी हैव इज नोन एज फुल कॉस्टिंग। Very first one that we have is full costing, which is also known as full costing is also known as absorption costing. कॉस्टिंग, आप लोगों में से जो लोग ए लेवल में अकाउंट्स पढ़ रहे होंगे उनके पास ये कॉन्सेप्ट्स उनको पहले से आइडिया होगा। बट जिनके पास नहीं है आइडिया उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव अ वेरी प्रिसाइज थ्योरी इन दिस कॉन्सेप्ट और यू कैन से इन दिस सब्जेक्ट, ताकि हमारे हमारे पास एक क्लैरिटी आ जाए कि ओके दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू डू एंड दिस इज व्हाट वी आर नॉट सपोज टू डू। अच्छा, जब हम अपने पास फुल कॉस्टिंग की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि इसका मोटिव क्या है, यानी कि हम फुल कॉस्टिंग क्यों करते हैं। देखो, फुल कॉस्टिंग का जो मेन पर्पस होता है, जो मेन रीजन होता है, इट इज द टोटल कॉस्ट पर यूनिट, यानी कि अगर मैंने एक यूनिट की प्रोडक्शन की तो उस एक यूनिट पे मेरा कितना खर्चा आया, ये तो मुझे पता हो ना। ठीक है, और ये जानने के लिए वी नीड टू कंसिडर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था, राइट। अच्छा, अब हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट इसकी कंसिडर करनी पड़ेगी। ये सारी चीजें हैं थ्योरी। लेट मी राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ व्हाट फुल कॉस्टिंग इज, ठीक है, ताकि पहले ही हमारे पास डेफिनेशन आ जाए, हमारे लिए इजी हो जाए। अच्छा जी, फुल कॉस्टिंग इज अ कॉस्टिंग मेथड, ठीक है, कॉस्टिंग का एक तरीका है जहां पर वेयर ऑल सारी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट costs are allocated to products, ठीक है, जहां पे हमारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों कॉस्ट जो होती हैं वो प्रोडक्ट्स पे हम एलोकेट कर रहे होते हैं। नाउ बिफोर आई प्रोसीड टूवर्ड्स एनी अदर थिंग, आई नीड टू मेक श्योर कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा हो कि फुल कॉस्टिंग का बैकग्राउंड क्या है। अच्छा, एज आई मेंशन कि बात हो रही है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट की, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम समझते हैं कि डायरेक्ट कॉस्ट क्या है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है, तो डायरेक्ट कॉस्ट इज बेसिकली द मटीरियल, लेट मी राइट इट डाउन, द मटीरियल यानी कि वो खर्चा जो हमारे पास हो रहा है, ठीक है, द मटीरियल दैट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन, इन द प्रोडक्शन ऑफ goods and services, but डायरेक्टली। अब ये डायरेक्टली का क्या सिनेरियो है, देखो ऊपर भी समझाया था, दोबारा समझा देते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। बेटा वो मटेरियल, वो रॉ मटेरियल की बात कर लो आप, या वो लेबर की बात कर लो जो डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ दैट गुड और सर्विस, देन यू विल कंसिडर इट अ डायरेक्ट कॉस्ट, यानी कि उन लोगों पे जो खर्चा हो रहा है या फिर उस मटेरियल को खरीदने में जो खर्चा हो रहा है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, अब इसकी एग्जाम्पल हम कंसिडर कर लेते हैं ताकि और चीज़ें इजी हो जाएं। एग्जाम्पल में आई वुड गिव यू वेरी वेरी प्रिसाइज और बहुत बच्चों वाली एग्जाम्पल कि इफ देर इज अ पर्सन हु इज मेकिंग अ चेयर, ठीक है, या फिर वो लकड़ी जो उस कुर्सी को बनाने के काम आ रही है डायरेक्टली इंक्लूड कर रही है, उसकी जो कॉस्ट होगी दैट वुड कंसिडर टू बी द डायरेक्ट कॉस्ट। लेकिन डायरेक्ट कॉस्ट में हमारे पास दो मेन चीजें आती हैं, ठीक है। इन डायरेक्ट कॉस्ट वी कंसिडर टू मेन थिंग्स। व्हाट आर दोस टू मेन थिंग्स? नंबर वन, डायरेक्ट मटेरियल, एंड नंबर टू, डायरेक्ट लेबर, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल और फिर
डायरेक्ट लेबर हमारे पास आ जाएगा। सही है। अच्छा, अब इसमें इसी में आई वुड लाइक टू इंक्लूड वन मोर थिंग कि जब हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट कॉस्ट की, तो बल्कि आई वुड रिवाइज दिस कॉन्सेप्ट ताकि चीजें और इजी चलती रहें। जब हम डायरेक्ट कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट है जो डायरेक्टली इनकर हो रही है किसी भी गुड या सर्विस की प्रोडक्शन के दौरान। सही है। व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग अ गुड और सर्विस, उसमें जो चीजें डायरेक्टली इंक्लूड हो रही हैं वो आपकी क्या हो गई? डायरेक्ट कॉस्ट हो गई। ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट की तरफ। वाई? बिकॉज ओवर हियर वी आर कंसिडरिंग कि इनडायरेक्ट कॉस्ट को भी हम देख रहे हैं। ठीक है। सो लेट्स डिस्कस व्हाट इनडायरेक्ट कॉस्ट इज। अच्छा, जब डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट थी जो डायरेक्टली इंक्लूड हो रही है या कंसिडर हो रही है या इनकर हो रही है व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग अ गुड और सर्विस, तो फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होगी? इट्स सिंपल। जो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, जो इनडायरेक्टली इनकर की जा रही है while producing a good or a service, right? So how can we define it? We can say that the material and labor, वो material और वो labor जो इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, that is used indirectly, that is used indirectly in the production of goods एंड सर्विसेज, तो उसको हम क्या कंसिडर करते हैं? वी कंसिडर इट इनडायरेक्ट कॉस्ट। अच्छा, अब इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या हम एग्जांपल दे सकते हैं? हम एग्जांपल ये दे सकते हैं कि अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि एक चेयर है जो लकड़ी से बनाई जा रही है, एक कुर्सी है जो वुड से बनाई जा रही है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा? उसमें हमें वुड रिक्वायर्ड होगी। तो वुड का जो एक्सपेंस है, या वो जो कुर्सी बनाने वाला बंदा है उसका जो एक्सपेंस है, दैट वुड बी कंसिडर टू बी द डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट कॉस्ट। बट उसके बाद अगर कोई बंदा जो है वो उसको पॉलिश कर रहा है, या फिर कोई बंदा जो है वो उसको डिस्ट्रीब्यूटर तक लेकर जा रहा है, ठीक है, यानी कि उस बनी हुई चेयर को, फिनिश गुड को डिस्ट्रीब्यूटर तक लेके जा रहा है, तो वो भी तो कॉस्ट है ना, वो भी तो चार्ज करेगा ना। दैट इज कंसिडर टू बी योर इनडायरेक्ट कॉस्ट, दैट इज कंसिडर टू बी योर इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट में हमारे पास कौन सी कॉस्ट आती हैं? हमारे पास सबसे पहले बेटा इनडायरेक्ट कॉस्ट में हमारे पास सबसे पहले आ जाती है वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि वेरिएबल ओवरहेड्स हम कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं फिक्स्ड ओवरहेड्स। ठीक है। अच्छा, फिक्स्ड ओवरहेड्स हों या वेरिएबल ओवरहेड्स हों, हम जब भी इनकी बात कर रहे हैं हमें ये समझ आनी चाहिए दैट ये जो दो एक्सपेंसेस हैं या ये जो दो ओवरहेड्स हैं, दे आर इनकर्ड दे आर इनकर्ड इनडायरेक्टली इन प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन के दौरान ये क्या इनकर हो रहे होते हैं? किस हिसाब से हो रहे होते हैं? इनडायरेक्टली इनकर हो रहे होते हैं ये डायरेक्टली इनकर नहीं होते। जब हम फिक्स्ड ओवरहेड्स की बात करते हैं, व्हेन वी डिस्कस अबाउट फिक्स्ड ओवरहेड्स, ठीक है, जब हम फिक्स्ड ओवरहेड्स की बात करते हैं तो ये कॉस्ट वो होती है दैट डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ goods and services या फिर production level. So I can precisely tell you that cost that does not change according to the production level। ठीक है, कितने यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए डजेंट मैटर, आपकी वो जो कॉस्ट है वो सेम ही रहेगी। ठीक है, इट विल रिमेन सेम। सो दिस इज बेसिकली जो यहाँ पर बात की जा रही है। आई होप इट्स गेटिंग क्लियर टू यू। अच्छा, जब हम बात कर रहे होते हैं ना ये डायरेक्ट लेबर की, ठीक है, या फिर अगर हमारे पास सवाल आता है कि भाई यू नीड टू कैलकुलेट योर टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो उसके भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स में हम उसको
कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स हाउ दिस कॉस्टिंग थिंग इज प्रोसीड, यानी कि हम फुल कॉस्टिंग करते कैसे हैं, हमारे पास क्या मेथड्स हैं फुल कॉस्टिंग करने के, हमें क्या आने चाहिए। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फुल कॉस्टिंग, हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं जिसमें हमारे पास आ जाता है, लेट मी राइट डाउन द हेडिंग, स्टेप्स ऑफ फुल कॉस्टिंग। ठीक है, फुल कॉस्टिंग करने का क्या तरीका है, लेट्स मूव अहेड विद दैट। ओके, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको टोटल डायरेक्ट कॉस्ट निकालनी है। फर्स्टली यू नीड टू कैलकुलेट द टोटल डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, सो नंबर वन इज कैलकुलेट टोटल डायरेक्ट कॉस्ट। सही है। Once you have calculated your total direct cost, number two, you need to calculate your total overheads. ठीक है, अब आपको क्या कैलकुलेट करने हैं, अब आपको टोटल ओवरहेड्स कैलकुलेट करने हैं। दिस इज योर अदर टास्क टू डू। ठीक है, अच्छा, टोटल आपने ये कैलकुलेट कर लिए ओवरहेड्स। फिर आपका जो थर्ड टास्क आता है दैट इज टू एलोकेट ओवरहेड्स, यानी कि आपके जो ओवरहेड्स हैं, आपके जो एक्सपेंसेस हैं, अब आप उनको एलोकेट करेंगे। लेकिन सिर्फ आपका यही काम नहीं है कि आप एलोकेट करें, बल्कि यू नीड टू चूज द राइट मेथड। ठीक है, यू नीड टू चूज द राइट मेथड, और हर कंपनी का आई वुड से कि हर कंपनी अपने मेथड से वो करती है काम। लेट मी राइट दिस थिंग, और फिर मैं आपको समझाती हूँ कि ये जब मैं चूज इन मेथड की बात कर रही हूँ तो व्हाट मेथड आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, दिस इज नॉट जो मैं मेथड्स आपको समझा रही हूँ, इट इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। मैं एक एडिशनल इंफॉर्मेशन के तहत आपको बता रही हूँ, ताकि आपकी नॉलेज में होनी चाहिए कि ओके यस वी हैव लर्न दिस थिंग, हमने ये चीज इस टाइम पे पढ़ी थी तो हमारे जहन में होनी चाहिए। अच्छा, अब जब हम चूज इन मेथड्स की बात कर रहे हैं, सो वी हैव डिफरेंट मेथड्स ऑफ एलोकेटिंग द ओवरहेड्स। सबसे पहले हमारे पास जो मेथड हम कंसिडर कर रहे होते हैं, या फिर आप ये कह लेंगे कंपनीज में तीन में से कोई भी एक मेथड जो है ना वो कंसिडर किया जा रहा होता है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम एबीसी मेथड को चूज करते हैं, लेकिन लेट मी राइट इट डाउन जस्ट फॉर योर गाइडेंस कह लो, या मतलब एक नॉलेज में होनी चाहिए बात। ठीक है, दैट इज प्लांट वाइड रेट मेथड। नंबर टू, इसकी डिटेल में हम नहीं घुसेंगे, वाई, क्योंकि हम फिर आगे जाके कंफ्यूज हो सकते हैं, दैट इज द रीजन। अच्छा, दूसरा हमारे पास आ जाता है बेटा डिपार्टमेंटल रेट मेथड। इन सब में क्या करते हैं उसको हम नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। नंबर थ्री हमारे पास आता है एबीसी मेथड, जिसका नाम वो एबीसी अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला एबीसी नहीं है, दिस इज एक्टिविटी बेस्ड मेथड। ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसकी तरफ जाते हैं, और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स जो बिजनेस होते हैं या फर्म्स होती हैं या कंपनीज होती हैं वो इसी मेथड को ऑप्ट करती हैं। ठीक है, आई होप ये चीज जो है वो क्लियर हो गई होगी। अच्छा, इसके बाद थर्ड स्टेप जो हमारे पास आता है दैट इज, यानी कि सॉरी फोर्थ जो हमारे पास आता है दैट इज टू कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट, क्योंकि हमने एक तरह से एवेल्युएट तो कर दिया ना, एलोकेशन तो हमने कर दी, तो टोटल कॉस्ट निकालना हमारे लिए हो गया होगा अब इजी। ठीक है, एक बार हमने टोटल कॉस्ट भी निकाल ली, सो नाउ इट्स टाइम कि हमने जितने आउटपुट आउटपुट प्रोड्यूस किया है, ठीक है, उसको हम डिवाइड करें बाय द टोटल कॉस्ट। ठीक है, क्यों हम डिवाइड कर रहे हैं, टू गेट द पर यूनिट कॉस्ट। ठीक है, दिस इज द इंटायर थिंग, दिस इज द इंटायर प्रोसेस, और यू कैन से दिस इज द इंटायर तरीका और ऑफ कैलकुलेटिंग द फुल कॉस्ट, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का पूरा तरीका हमारे पास ये है, दिस इज हाउ वी कैलकुलेट इट। ठीक है, अच्छा, अब इसके कुछ बेनिफिट्स भी हो सकते हैं कि भाई हम फुल कॉस्टिंग कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं, और इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होंगे। ओके, द रीजन व्हाई आई ऑलवेज ट्राई कि मैं चीज़ों के या कॉन्सेप्ट्स के बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स भी ऐड करूं, इज टू मेक श्योर कि जब आप कोई क्वेश्चन को आंसर कर रहे हों आपके पास रीजंस हों।
ठीक है, आपके पास रीजंस हो दैट ओके इस बिजनेस में हम इस ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं, तो व्हाई, व्हाट इज द रीजन, हाउ इज इट गोइंग टू बेनिफिट यू और हाउ इज इट गोइंग टू लाइक बेनिफिट योर बिजनेस, हमें आइडिया होना चाहिए। Okay, so as I mentioned that we are going to proceed with the benefits of using full costing or benefits of applying full costing. तो हम उसकी तरफ जाते हैं and let's talk about that. अच्छा जी, benefits of फुल कॉस्टिंग। ठीक है, बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं फुल कॉस्टिंग के नंबर वन, इट विल इंश्योर और इट विल हेल्प यू और इट विल मेक श्योर कि आपकी पूरी की पूरी कॉस्ट जो है ना वो कवर हो रही हो। ठीक है, कहीं भी आपने कोई एक भी कॉस्ट जो है वो मिस ना की हुई हो। सो इट विल इंश्योर all costs are covered. Then it will reduce the chances और फाइनेंशियल रिस्क जो होता है ना हमारे पास लॉस का या चांसेस ऑफ लॉस, उसको रिड्यूस करेगा लॉन्ग टर्म में। ठीक है, रिड्यूसेस क्योंकि हमारे पास उससे हम अपनी स्ट्रैटेजीज डिजाइन कर रहे होंगे तो हम ज्यादा बेहतर तरीके से करेंगे। सो रिड्यूसेस लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल risk and it will support the decision making of course। ठीक है, एंड हम जो है वो इट इज लाइक दिस मेथड पर्टिकुलरली जो फुल कॉस्टिंग होता है ये बहुत इफेक्टिव होता है सिंगल प्रोडक्ट फर्म्स के लिए। सिंगल प्रोडक्ट फर्म्स कौन सी होती हैं, जो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बना रही होती हैं, उनको हम कंसिडर करते हैं सिंगल प्रोडक्ट फर्म्स। और उनके लिए ये मेथड जो है वो बहुत इफेक्टिव होता है ताकि वो इजीली इवेल्युएट कर लेती हैं चीज़ों को, कॉस्ट को, अपने एक्सपेंसेस को। ठीक है, सो आई विल राइट ओवर हियर पर्टिकुलरली for single product firms। ठीक है, so this is basically these are the benefits of going with this full costing thing। ठीक है, अगर आप full costing के साथ जाते हैं so these are the benefits that you can of course avail, but we have some drawbacks as well। But before I proceed with the drawbacks, it is important for you as a student to understand के how can you write down the analysis paragraph in your exam। वैसे तो analysis depends on what you have written in your application and knowledge, लेकिन एक आइडियली अगर हम बात कर रहे हो फुल कॉस्टिंग की, उसके बेनिफिट्स की, तो हम ये बता सकते हैं दैट फुल कॉस्टिंग इज beneficial because it ensures that overheads are not ignored। In the long run, all cost must be covered for the business and it will particularly help the business in long term pricing and strategic decisions। ठीक है, इस तरह हम उसके आंसर को एनालिसिस में लिख सकते हैं, इस तरह से हम उसको पैराग्राफ में अपने डाल सकते हैं अगर बात बेनिफिट्स की हो रही हो तो। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कहीं पे भी उसको आप जो है वो लगा दें, एक आइडियली मैंने एक जस्ट फॉर योर गाइडेंस बताई थी। ठीक है, देन वी हैव सम लिमिटेशंस, यानी कि देन वी हैव सम ड्रॉबैक्स कि अगर आप फुल कॉस्टिंग यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, क्या लिमिटेशंस आ सकती हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट सम लिमिटेशंस ऑफ फुल कॉस्टिंग। फुल कॉस्टिंग की कुछ लिमिटेशंस की हम बात करते हैं। फुल कॉस्टिंग की जब हम लिमिटेशंस की बात करेंगे सो वी कैन टॉक अबाउट के ओवरहेड्स एलोकेशन जो होती है उसमें हमें थोड़ी सी चीजें जो हैं वो फेस करनी पड़ सकती हैं, या फिर यूनिट कॉस्ट हमारी वेरी कर सकती है आउटपुट टू आउटपुट।
ठीक है, लेट मी फर्स्ट राइट दिस पॉइंट के यूनिट कॉस्ट वेरी विद आउटपुट। ठीक है, एंड इफ वी आर यूजिंग फुल कॉस्टिंग तो फिर वो हमें जो है वो उसमें भी प्रॉब्लम दे सकती है। फुल कॉस्टिंग इसमें प्रॉब्लम आ सकती है हमारे पास, फुल कॉस्टिंग कुड बी मिसलीडिंग फॉर द शॉर्ट टर्म डिसीजंस। सो मिसलीडिंग फॉर शॉर्ट टर्म डिसीजंस। एंड फुल कॉस्टिंग की अगर हम दोबारा बात करें या लिमिटेशन की उसकी बात करें तो इट कैन रिजल्ट एज और इन अनकम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्योंकि हम फुल कॉस्टिंग की तरफ जा रहे हैं, हम अपने प्राइसेस को उस हिसाब से सेट ही नहीं कर पा रहे। सो दिस कुड ऑल्सो बी मेंशन इन योर एनालिसिस एज अ ड्रॉबैक इफ यू वांट टू। सही है, अनकम्पेटिटिव प्राइसिंग। आई होप दिस एंटायर थिंग अबाउट फुल कॉस्टिंग इज क्लियर टू यू कि फुल कॉस्टिंग में क्या होता है, व्हाट फुल कॉस्टिंग इज, उसमें हम कौन सी कॉस्ट को कंसिडर कर रहे होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को कर रहे होते हैं, डायरेक्ट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, इनडायरेक्ट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, फिर क्या स्टेप्स होते हैं फुल कॉस्टिंग कैलकुलेट करने के, व्हाट कुड बी द बेनिफिट, व्हाट कुड बी द ड्रॉबैक। ये तमाम बातें हमने इसमें कंसिडर कर ली हैं। मूविंग ऑन विद अनदर वन, द अदर थिंग दैट वी कुड consider the other thing that we could consider, or the other type of costing that we have, is contribution costing. The other type of costing that we have is contribution costing. जैसे हमने फुल कॉस्टिंग पढ़ी थी इसी तरह हम कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग पढ़ेंगे। सो नंबर टू दैट वी हैव इज कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग। और कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग का एक और नाम होता है जिसको हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। अच्छा, नाउ देयर इज अ क्वेश्चन कि व्हाट मार्जिनल कॉस्टिंग या फिर कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग इज। कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग विल इंक्लूड all the variable cost and all the variable overheads, but it will ignore all the fixed overheads। अभी हमने ऊपर इस चीज को पढ़ लिया था, दोबारा हम उसको रिवाइज कर लेंगे ताकि चीजें इजी हो जाएं। बट लेट मी फर्स्ट राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग। कि कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग considers contribution costing considers only variable marginal costs and ignores fixed and ignores fixed overheads। This is what contribution costing is known as। ठीक है, या फिर how you can basically divide डिफाइन इट। ठीक है, इसे हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग। अच्छा, अब जब हम बात कर रहे हैं कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग की तो देयर माइट बी अ क्वेश्चन इन योर माइंड कि हम कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट और वेरिएबल ओवरहेड्स को क्यों कंसिडर कर रहे हैं, या फिर हम फिक्स्ड ओवरहेड्स को क्यों इग्नोर कर रहे हैं। सो लेट मी write this extra information over here that what could be the reason of ignoring it। ठीक है, so the reason behind ignoring it is because fixed cost will remain same during the production period। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो सेम रहेगी प्रोडक्शन पीरियड में, जो इररेलेवेंट हो जाएगी, यानी कि हमें उसको कंसिडर करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। कब? जब हम शॉर्ट टर्म डिसीजंस ले रहे होंगे तब। Okay, so it is not going to be important for us. That is why we ignores the fixed cost। Let me write this down।
because fixed overheads remain same during the production period, which makes it irrelevant for short रन या फिर शॉर्ट टर्म decision making. So this is basically why we ignore the fixed cost and why we only consider the variable cost and the variable overheads. Moving on with the same topic. अब contribution costing की जब हम बात कर रहे हैं, so we have a formula to calculate the contribution. ठीक है, let's talk about that too. Let's learn about that too. हमारे पास contribution का जो formula आता है, contribution is equals to the sales revenue. ठीक है, सेल्स रेवेन्यू जो आपकी जो सेल्स का अमाउंट आ रहा होता है, सेल्स रेवेन्यू को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं वेरिएबल कॉस्ट से. ठीक है, सेल्स रेवेन्यू माइनस वेरिएबल costs. That would give you the contribution or the amount of contribution. सही है, लेकिन contribution हम क्यों calculate कर रहे हैं? What's the reason of doing that? Again, देखो, the reason why we are calculating contribution is to make sure कि हम cost जो fixed cost हमारी है उसको हम cover कर रहे हो, ठीक है, और हम profit कमा रहे हैं. सही है, so let me write it down for you कि contribution is used. कंट्रीब्यूशन कहाँ यूज किया जाता है, यानी कि क्यों यूज किया जाता है? टू कवर फिक्स्ड कॉस्ट्स एंड टू जनरेट प्रॉफिट्स. ठीक है, दैट इज व्हाई वी कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन बेसिकली. आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी. अच्छा, यस, जब हम जनरेट प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे इस चीज को भी क्लियर कर दें कि प्रॉफिट इज डिफरेंट फ्रॉम कंट्रीब्यूशन. ठीक है, और प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारे पास होता है टोटल कंट्रीब्यूशन, यानी कि जो हमारा कंट्रीब्यूशन का अमाउंट आ रहा है वो माइनस द फिक्स्ड cost. This is the formula for us to calculate total contribution, to calculate profit. ठीक है, once we are done with this scenario, with this concept, it is important for us to again learn the benefits and drawbacks of contribution costing as well, क्योंकि important है पढ़ना भाई, इस तरह इग्नोर नहीं कर सकते जैसे यूजुअली हम कर रहे होते हैं. सो लेट्स प्रोसीड विद द बेनिफिट्स एंड द ड्रॉबैक्स ऑफ कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग के. अगर हम कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग यूज कर रहे हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं? कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग वुड हेल्प अ बिजनेस टू मेक डिसीजंस फॉर शॉर्ट रन. ठीक है, सो द फर्स्ट वन इज दैट इट इज आइडियल फॉर शॉर्ट रन डिसीजंस. ठीक है, देन इट इज और इट विल सपोर्ट द स्पेशल ऑर्डर डिसीजंस जो आपके पास अक्सर आ जाते हैं. तो स्पेशल ऑर्डर डिसीजंस जो होते हैं उसके लिए इट वुड हेल्प द बिजनेस. सो आई विल राइट सपोर्ट स्पेशल ऑर्डर decisions, right? And it will avoid wrong or misleading overhead allocation. ठीक है, तो I would write over here कि avoids inaccurate
ओवरहेड एलोकेशन। ठीक है, सो दिस इज व्हाट are some benefits of using or applying contribution costing, but we have some limitations too. Limitations means some drawbacks. Limitations of contribution costing, उसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है that it is going to, it is unsuitable for your long term decisions. बिजनेस के लॉन्ग टर्म डिसीजंस, ठीक है, अनसूटेबल फॉर लॉन्ग टर्म डिसीजंस, एंड इट माइट हैव अ रिस्क, या फिर अगर आप इस पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सो देयर इज गोइंग टू बी अ रिस्क ऑफ अंडर प्राइसिंग। ठीक है, एंड इट इज नॉट suitable और नॉट appropriate for single product firms or single product companies. So yeah, I hope this is clear to you that how you can evaluate or write down the analysis considering the benefits and the drawbacks of contribution costing. Now it's time to move towards another topic, another concept of the same chapter. हम कॉस्टिंग पढ़ें और ब्रेक इवन ना पढ़ें ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, सो व्हेन वी आर लर्निंग दिस चैप्टर इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, दैट इज ब्रेक इवन। ब्रेक इवन एनालिसिस। अच्छा, अब ये ब्रेक इवन एनालिसिस का क्या सीन होता है? देखो, ब्रेक इवन ना एक सिचुएशन होती है, या आप कह लो कि एक पॉइंट होता है, और ये वो पॉइंट होता है जहां पे देयर इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। ठीक है, तो मिस जब प्रॉफिट भी नहीं हो रहा, लॉस भी नहीं हो रहा, तो हो क्या रहा है? सिर्फ आपकी कॉस्ट कवर हो रही है। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ब्रेक इवन अकर्स, या फिर ब्रेक इवन तब होता है जब टोटल रेवेन्यू इक्वल होता है टोटल कॉस्ट के, यानी कि मैंने प्रोडक्शन जो की, यानी कि मेरी जो टोटल कॉस्ट आ रही थी, टोटल कॉस्ट जो मेरी आई थी वो आई थी 1000 की। ठीक है, और जो मेरी सेल्स हुई है ना, यानी कि जो मुझे टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो भी 1000 का ही हुआ है। तो क्या मैंने प्रॉफिट जमा किया? नहीं। क्या मैंने लॉस किया? नहीं। बल्कि सिर्फ मैंने जितना खर्चा किया था, जितना एक्सपेंस किया था उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन पे या उसको कंज्यूमर तक पहुंचाने में, बस मुझे वो कॉस्ट कवर हुई है। दैट इज इट। ठीक है, सो दैट इज नोन टू बी द ब्रेक इवन। जब हम ब्रेक इवन एनालिसिस पढ़ते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट ब्रेक इवन कब होता है? ब्रेक इवन occurs when total revenue is equals to total cost। ठीक है, आपका टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट क्या होती है? इक्वल होती है। सही है। फिर हमारे पास एक आता है टोटल, सॉरी, फिर हमारे पास एक आता है ब्रेक इवन आउटपुट, कि व्हाट ब्रेक इवन आउटपुट इज। ठीक है, तो हम उसको भी समझ लेते हैं कि ब्रेक इवन आउटपुट हम किसे कहते हैं। लेट मी राइट इट डाउन ओवर हियर कि ब्रेक इवन आउटपुट क्या होता है। When we talk about break even output, we are actually talking about, या फिर break even level of output, we are actually talking about the quantity। ठीक है, वो quantity जो आपको break even point तक पहुंचा रही हो। ठीक है, so how can we define that? We can say that the quantity
that must be produced or sold for total revenue to equal total cost. ठीक है. अच्छा, वी ऑल नो व्हाट रेवेन्यू इज, राइट. रेवेन्यू कहते हैं सेल्स को, कि हमने कितना सेल करके पैसे कमाए हैं. दैट इज व्हाट वी कॉल रेवेन्यू, राइट. अच्छा, अब मूविंग ऑन विद द कैलकुलेशंस ऑफ हाउ कैन वी कैलकुलेट द ब्रेक इवन. अच्छा, ब्रेक इवन कैलकुलेट करने का हमारे पास पूरा फॉर्मूला होता है. देन आई विल ड्रॉ दैट डायग्राम एंड देन टेल यू कि ब्रेक इवन पॉइंट होता कौन सा है और उसके आसपास कौन से और पॉइंट्स होते हैं. सो ब्रेक इवन की जब हम बात कर रहे हैं, आउटपुट, ब्रेक इवन आउटपुट की जब हम बात कर रहे हैं, सो इट्स बेसिकली बाय द फिक्स्ड कॉस्ट, basically calculate with the help of fixed costs that is supposed to be divided with the contribution cost, sorry, contribution per unit. ठीक है. So this is how you can calculate your break even output. And then ब्रेक इवन के बाद अगर आपको लाइक यू हैव कैलकुलेटेड द ब्रेक इवन, राइट, उसके बाद हमारे पास आते हैं ब्रेक इवन चार्ट. एक पूरा हमारे पास डायग्राम होती है जो होती है किसकी, ब्रेक इवन चार्ट की. तो हम जरा उसके बारे में भी देख लेते हैं कि भाई व्हाट ब्रेक इवन चार्ट इज. सो ब्रेक इवन चार्ट एक ऐसा ग्राफ होता है जो आपको कॉस्ट, कैसे कॉस्ट आपकी कैलकुलेट हो रही है, कैसे आपका रेवेन्यू जनरेट हुआ हुआ है वो बताता है, और फिर उसी कॉस्ट और रेवेन्यू की हेल्प से आप पहुंचते हैं अपने ब्रेक इवन पॉइंट तक. लेकिन that break even graph just not tell you the break even point only, but it also tells you about the margin of safety. Now what is margin of safety? बिफोर वी प्रोसीड विद मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इट्स इम्पोर्टेंट फॉर अस कि हम ब्रेक इवन चार्ट के बारे में बात कर लें. और यहीं पे लेट मी ऐड, बल्कि लेट मी टॉक अबाउट मार्जिन ऑफ सेफ्टी ओवर हियर, ताकि हमारे पास उसकी डेफिनेशन पहले हो और ब्रेक इवन चार्ट की बाद में बन जाए. ठीक है. अच्छा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होती है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सबसे पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि मार्जिन ऑफ safety is equals to the actual output that will be subtracted with the break even output. ठीक है. और जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो हमारा बेसिकली मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक ऐसा पॉइंट होता है जो ब्रेक इवन के बाद आता है. ठीक है. वंस वी हैव अचीव्ड दैट ब्रेक इवन पॉइंट, हम ब्रेक इवन पॉइंट तक अगर पहुंच गए हैं तो उसके बाद जो हमारे पास आ रहा है तो वो हमारा एक तरह से सेफ जोन है. ठीक है. यानी कि अब जिस पॉइंट में हम एंटर हो गए, वी हैव कवर्ड द कॉस्ट बिफोर, राइट, प्रीवियसली वी हैव कवर्ड द कॉस्ट. अब हम जो भी अर्न करेंगे दैट इज गोइंग टू बी आवर प्रॉफिट. सो दैट इज व्हाट मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज. ठीक है. मार्जिन ऑफ सेफ्टी, like I have already mentioned how you can calculate it, but margin of safety is the amount. Let me write it down. Okay, margin of safety is the amount by which the sales level exceeds the break-even level of out. ठीक है. So that is what margin of safety is. Now let's talk about break-even का graph. जिसको हम ब्रेक इवन चार्ट भी कहते हैं. अच्छा, नाउ ब्रेक इवन चार्ट की जब हम बात करेंगे, सो वी नीड टू बी वेरी अटेंटिव.
because it's important for us to understand what break-even chart looks like so that we could easily identify things. We could easily process whatever is being taught to you in this lecture. ठीक है? अच्छा जी. Let's start. So we all know how to make a graph, right? एक ग्राफ कैसे बनता है? ग्राफ में हमारे पास दो एक्सेस होते हैं. एक हमारे पास एक्स होता है और एक हमारे पास होते हैं वाई. ठीक है, इसमें भी सेम सिनेरियो होगा. एक एक्स एक्सेस होगा, एक वाई एक्सेस होगा. ओके, इफ आई टॉक अबाउट लाइंस, हाँ लाइंस थोड़ी टेढ़ी बन रही होती हैं. लाइंस मेरी स्ट्रेट नहीं बन रही होती. ठीक है, सो ऑन वन एक्सेस वी विल टॉक अबाउट द कॉस्ट. On one axis we have cost and sales revenue. ठीक है, that's in dollars. And on the other axis we have units that are either sold. ठीक है, अच्छा. अब I'll be choosing different shades or different colors to identify each curve or each line ताकि आसानी हो जाए. देखो, सबसे पहली लाइन जो हमारी बनेगी ना, वो बनेगी फिक्स्ड कॉस्ट की. ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट स्ट्रेट लाइन बन रही है. वाई? बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट वाज द कॉस्ट दैट वुड रिमेन सेम नो मैटर हाउ मच नंबर ऑफ यूनिट्स यू आर प्रोड्यूसिंग, राइट? तो उसी वजह से फिक्स्ड कॉस्ट का जो हमारी लाइन आ रही है, दैट इज straight, that is not moving from one point to another. ठीक है, fixed cost would remain same. अच्छा, इसके बाद we have another line, we have another curve that is for the variable cost. Variable cost की जो line होगी वो आपकी start हो रही होगी from the origin. What is origin? Origin is this point. ठीक है, आपकी variable cost की जो line है वो start हो रही होगी इधर से और वो इस तरह से जा रही होगी. ठीक है, वो कुछ इस तरह से जारी होगी क्योंकि वो किसकी कर्व है, किसकी लाइन है? वो वेरिएबल कॉस्ट की लाइन है. ठीक है, सो लेट मी हाईलाइट इट दैट इट इज वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, अच्छा. वेरिएबल कॉस्ट की लाइन क्यों आपकी ओरिजिन से गई और फिक्स्ड कॉस्ट की क्यों ओरिजिन से नहीं गई? एज यू कैन सी, ये फिक्स्ड कॉस्ट है, ये वेरिएबल कॉस्ट है, तो ये अलग अलग क्यों है? दोनों यहीं से क्यों नहीं स्टार्ट हो रही? दोनों यहीं से स्टार्ट इसलिए नहीं हो रही क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ आउटपुट दैट आर बीइंग प्रोड्यूस्ड उससे फ्लक्चुएट कर रही है. अगर आपने लेट सपोज 10 यूनिट्स बनाए तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट जरा सी आएगी. अगर आपने वहीं पे 100 यूनिट्स बनाए तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट थोड़ी ज्यादा आएगी, राइट? एंड सो ऑन, इसी तरह चलता रहेगा. लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट, इट डजेंट मैटर आप जितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो, 100, 1000, 10,000 और वॉट एवर. ठीक है, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहेगी. इस वजह से द curve of the fixed cost or the line for the fixed cost was not starting from the origin, it was starting from a bit above that origin. ठीक है, अच्छा. वंस वेरिएबल कॉस्ट का कर्व हमने बना लिया, वी हैव डन विद द फिक्स्ड कॉस्ट का भी कर्व, देन वी हैव टू मेक द कर्व फॉर द टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट का जो कर्व होगा दैट वुड स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड नॉट फ्रॉम ओरिजिन. अच्छा, अब अगेन टोटल कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करते थे? इफ यू रिमेंबर, तो टोटल कॉस्ट का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, दैट वाज वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट. ठीक है, मतलब वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट का जो सम होगा उसको हम टोटल कॉस्ट कंसिडर करेंगे. यही था ना? तो वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ जो है या कर्व जो है वो इधर से स्टार्ट हो रहा है और फिक्स्ड कॉस्ट का इधर से. तो फिर टोटल कॉस्ट का कर्व किधर से बनेगा? इधर से ही बनेगा, ओरिजिन से नहीं बनेगा. ठीक है, क्योंकि अगर हम उसको ओरिजिन से बना रहे होंगे दैट वुड बी कंसिडर्ड टू बी लाइक, दैट वुड कंसिडर कि आपने अपनी वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी फिक्स्ड कॉस्ट को इग्नोर कर दिया. इसी वजह से आप कहाँ से बना रहे हैं? आप इधर से स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम दिस पॉइंट. ठीक है, ओके, सही है. इस तरह से आपका बन जाएगा. कौन सा कर्व है ये हमारे पास? ये हमारे पास है टोटल कॉस्ट का कर्व.
सही है। अच्छा, अब टोटल कॉस्ट का कर्व जब हमारा एक बार बन जाएगा, फिर हम बनाएंगे अपने पास रेवेन्यू का कर्व, यानी कि रेवेन्यू की लाइन। ठीक है, जो कहाँ से स्टार्ट होगी, ओरिजिन से ही स्टार्ट होगी, और रेवेन्यू की लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही होगी टोटल कॉस्ट की लाइन को। यही हमारा मेन मोटिव है कि वो इंटरसेक्ट कर रही हो। अच्छा मिस, व्हाट इफ, देखो अभी इस सिनेरियो में जो मैंने अभी ग्राफ बनाया, इसमें इट इज इंटरसेक्टिंग इट। ठीक है, यानी कि ये ऊपर की तरफ जा रही है। लेट मी अगेन शो यू, ये यूं करके ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, और ये हमारे टोटल कॉस्ट है। जो ये लाइन जो है ये इंटरसेक्ट हो रही है एक दूसरे से, यूं क्रॉस में जा रही है, इससे हम कहते हैं इंटरसेक्ट होना। ठीक है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी थी कि मिस व्हाट इफ ये जो हमारा ये आपने जो रेवेन्यू का कर्व बनाया है, ठीक है, ये जो बना है ये रेवेन्यू का कर्व है। ठीक है, व्हाट इफ ये रेवेन्यू का जो कर्व है ये इधर नहीं बन रहा होता, बल्कि लेट्स जस्ट सपोज कि वो कुछ इस तरह से बन रहा होता, तो ब्रेक इवन तक तो हम पहुंचे ही नहीं है, यानी कि हमारी कॉस्ट ज्यादा थी और हमारी सेल्स कम थी। ठीक है, लेकिन इन दिस सिनेरियो जो अभी इधर बना हुआ है, दिस सिनेरियो स्टेट्स दैट योर कॉस्ट, सॉरी दैट योर रेवेन्यू वॉज हायर देन योर कॉस्ट। ठीक है, अच्छा, वंस दिस कर्व का सिनेरियो इज डन, तो फिर हमें ये समझना है कि विच पॉइंट विल बी कंसिडर्ड द ब्रेक इवन पॉइंट। सो द पॉइंट जहाँ पे हमारे पास हमारी टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू का कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट पॉइंट विल बी कंसिडर्ड टू बी योर टोटल, सॉरी दैट पॉइंट विल बी कंसिडर्ड टू बी योर ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट को हम क्या कंसिडर करेंगे, वील कंसिडर इट ब्रेक इवन पॉइंट। सही है। तो बस ब्रेक इवन पॉइंट में क्या बस यही होता है कि हमें सिर्फ इस तरह से बताना होता है? नहीं, इतना सा नहीं होता, बल्कि हमें उसको आइडेंटिफाई करना होता है। अगर उसने पूछा आइडेंटिफाई ब्रेक इवन नंबर ऑफ आउटपुट, तो फिर हमारे पास जो यहाँ पे नंबर आ रहा होगा, जो यहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ होगा, क्वांटिटी जो लिखी हुई होगी, वो मेंशन करनी होगी। लेकिन अगर वो कहता है टू स्टेट द ब्रेक इवन कॉस्ट, तो फिर हमारे पास जो इधर डेटा आ रहा होगा ऑन दिस साइड, हम उसको कंसिडर कर रहे होंगे जो इस साइड पर आ रहा हो। ठीक है, अच्छा, आई रियली होप दैट इट इज गेटिंग क्लियर कि ब्रेक इवन क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा है, ब्रेक इवन ये नंबर ऑफ यूनिट्स में क्या आ रहा है, और हमारे पास ब्रेक इवन कॉस्ट में क्या आ रहा है। इसके बाद हमारे पास ना ये एरिया आ रहा है। इफ यू कुड सी दैट ओवर हियर वी हैव दिस एरिया। ठीक है, जो कहाँ पर है, ब्रेक इवन के पॉइंट के बाद है एक एरिया हमारे पास। किसके बाद है, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद हमारे पास एक एरिया है जो कि ये वाला है। ठीक है, ये जो एरिया होता है जो ब्रेक इवन पॉइंट के बाद होता है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी एरिया ऑफ प्रॉफिट। दैट इज कंसिडर्ड टू बी एरिया ऑफ प्रॉफिट। वो एरिया जो ब्रेक इवन पॉइंट के बाद आ रहा हो, उसको हम कंसिडर करते हैं एरिया ऑफ प्रॉफिट से। ठीक है, एरिया ऑफ प्रॉफिट। लेकिन वहीं पे वो एरिया, दैट पर्टिकुलर एरिया दैट इज यू नो बिफोर द ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि ये वाला जो पूरा एरिया है, इस पॉइंट पे अगर आप फॉल कर रहे हैं, इस पॉइंट पे अगर आपकी सेल्स जो है आ रही हैं, या कोई भी अगर इस किस्म का मसला है, दैट मीन्स दैट दिस इज कंसिडर्ड टू बी योर एरिया ऑफ लॉस। ठीक है, दिस इज कंसिडर्ड टू बी योर एरिया ऑफ लॉस, यानी कि अभी आपने लॉस कर दिया है, एरिया ऑफ लॉस। ठीक है, दिस इज कंसिडर्ड टू बी योर एरिया ऑफ लॉस। तो मिस, आपने ऊपर एक वर्ड पढ़ाया था, एक टर्म पढ़ाई थी जो क्या थी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सो वेयर इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सो फार वी हैवंट लर्नड अबाउट इट। हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो आ रही है वो आ रही है इधर, द एरिया आफ्टर द ब्रेक इवन इज नोन एज योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, ये आपके पास आ गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर आप इधर कहीं फॉल कर रहे हैं, दैट मीन्स गुड, आपने अपनी कॉस्ट कवर कर ली। अब अगर 1 रुपए भी आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो, दैट इज योर प्रॉफिट। ठीक है, समझ आ गई? तो ब्रेक इवन जो है वो आपको ये चीजें बता रहा होता है, इस तरह से गाइड कर रहा होता है चीजों पे।
इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस कि हम इस चीज़ को इवेल्युएट लाजमी करें कि हाउ ब्रेक इवन इज कैलकुलेटेड। ठीक है, तो जब हम ब्रेक इवन एनालिसिस भी पढ़ रहे होते हैं तो भी हम उन चीज़ों को उसी हिसाब से देखते हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू आइडेंटिफाई कि हम ब्रेक इवन मतलब करते क्यों हैं, क्या सिनेरियो होता है। देखें, इफ आई टॉक अबाउट ब्रेक इवन एनालिसिस, तो उसका हम यूज तब करते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस का जब हमें प्राइसिंग डिसीजंस लेने होते हैं। ठीक है, सो आई विल राइट डाउन द हेडिंग ओवर हियर, यूजेस ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। तो ब्रेक इवन एनालिसिस में हमारे पास जो रीजंस आ जाते हैं वो सबसे पहला ये आता है, प्राइसिंग चेंजेस। ठीक है, कि हमें प्राइस चेंज करने हैं। क्यों भाई, क्यों आपको प्राइस चेंज करने हैं? क्योंकि हमने जो प्राइस अभी रखे हुए हैं उस प्राइस पे तो हम अपनी कॉस्ट को कवर ही नहीं कर पा रहे। ठीक है, हम ब्रेक इवन तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, या अगर हम पहुंच भी रहे हैं तो हम इतना अपने पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी में नहीं जा पा रहे। ठीक है, देन इन केस इफ वी नीड टू मेक सम सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, ठीक है, दैट इज व्हाई वी कैन ऑल्सो कंसिडर द ब्रेक इवन एनालिसिस। सो दिस इज व्हाट ब्रेक इवन एनालिसिस इज यूजफुल फॉर। लेकिन ब्रेक इवन एनालिसिस के कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं। अगर हम ड्रॉबैक्स की बात करें ब्रेक इवन एनालिसिस की, ड्रॉबैक्स ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करें ब्रेक इवन एनालिसिस की ड्रॉबैक्स की, तो देखो, फिक्स्ड कॉस्ट में चेंज, इसका क्या मतलब है कि भाई आगे जाके फिक्स्ड कॉस्ट चेंज हो सकती है। ठीक है, एंड योर ब्रेक इवन, दैट एंटायर चार्ट, दैट एंटायर ग्राफ इज बेस्ड ऑन योर अजम्पशंस। वो सब कुछ फोरकास्टेड है। ठीक है, जो आपने लाइंस बना रहे हैं कॉस्ट की, रेवेन्यू की, वो जो लीनियर कॉस्ट आपकी आ रही है या रेवेन्यू आ रहा है, वो सब अजम्पशंस हैं। आप इन्वेंट्री को इग्नोर कर रहे हैं। आप सेमी वेरिएबल कॉस्ट की जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसको आपको कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, जो कि आप नहीं कर रहे हैं। सो दीज आर अ फ्यू ड्रॉबैक्स। ठीक है, लेट मी राइट दीज ड्रॉबैक्स ओवर हियर, कि नंबर वन, फिक्स्ड कॉस्ट माइट चेंज। देयर आर सम फैक्टर्स जिसकी वजह से फिक्स्ड कॉस्ट चेंज हो जाती है। ठीक है, एंड योर ब्रेक इवन इग्नोर्स इन्वेंट्री एंड इट इज बेस्ड ऑन forecasts. So this is what break-even limitations are for us. I hope ये चीजें जो हैं वो क्लियर चल रही होंगी। कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन, कोई चीज नहीं होगी। ठीक है, इफ इन केस अगर किसी के जहन में कोई सवाल हो, कोई चीज पूछनी हो, सो आई एम हेयर फॉर हेल्प। अच्छा, अब देखें, व्हाट वी हैव कवर्ड इन दिस चैप्टर, स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग, वी हैव डन अबाउट कॉस्ट, के कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट इन्फॉर्मेशन क्या होती है, एक्यूरेट कॉस्ट इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, यानी कि क्यों वो ज़रूरी होती है। देन टाइप्स ऑफ कॉस्ट हम कवर कर चुके हैं। वी हैव लर्न 8 टाइप्स ऑफ कॉस्ट। ओके, वी हैव लर्न अप्रोचेस ऑफ कॉस्टिंग, जिसमें हमने 2 अप्रोचेस डिस्कस की हैं बट इन डिटेल अलॉन्ग विद द बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स, सो इट वुड बी ईजियर फॉर द स्टूडेंट और द कैंडिडेट टू राइट डाउन द एनालिसिस फॉर इट। देन वी हैव कंप्लीटेड द ब्रेक इवन एनालिसिस एज वेल, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि ब्रेक इवन में कौन कौन से एक्सेस होते हैं, और जो भी एक्सेस होते हैं उसमें हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, ब्रेक इवन चार्ट हम कैसे बनाते हैं, और हमारे पास क्या यूजेस हैं ब्रेक इवन के और क्या ड्रॉबैक्स हैं ब्रेक इवन के। आई होप दैट दिस entire lesson would be helpful for you. In case if you have any questions, any queries, anything to discuss, if you think that there is something that I have missed and I can improve after adding it, like I can improve my teaching methods, so you can just drop me a message, comment below, and I'll help you out with it. Thank you.